Namaskar bachcho, hope all are fine and safe. Let's get into today's topic, and the topic is aspects of staffing. Under aspect of staffing, we are going to see the different aspects. This aspect of staffing is also called as components or elements of staffing. Okay, it is also called as components or elements of staffing. What are the components or elements of staffing? The first one is recruitment, next selection, and the third one is training. All these three aspects are being briefly discussed in the previous topic under staffing process. Okay, वहाँ पे हमने 9 topics we have discussed about the process of staffing. Okay, right from estimating manpower requirement up to compensation. तो जब भी आपको staffing process पूछा जाएगा, you have to write all those points in step wise. Okay, and when aspects of staffing or आपका components और elements of staffing पूछा जाता है, so definitely you have to write recruitment, selection and training. Okay, so all these things are there in the staffing aspect. Today I am going to discuss about recruitment in full. Okay, recruitment हम लोग detailed recruitment में क्या है वो discuss करेंगे. Recruitment हम वहाँ पे भी देख चुके हैं in detail. We are going to see here. Okay, so see recruitment. What is the meaning of recruitment? The process of searching prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization. So searching, why we are doing recruitment? In the previous class itself I told for searching prospective employees. ठीक है? Why? To stimulate them to apply for job in the organization. Why? What is the objective of stimulating the people to apply for job? The objective is to create a pool of prospective employees. आपको you need to create a pool of prospective employees so that आपको क्या मिलेगा उससे? From which the best candidates can be selected. जितने ज़्यादा application आएंगे आपके पास उतना best candidates को आप चुन सकते हैं. See, if बहुत आपका जो भी requirement है उसके हिसाब से जो है you have not given advertisement and all, बहुत कम application आया है तो you won't get choices. ठीक है, बहुत सारे चॉइस नहीं मिलेगा. सो एज टू गेट मच चॉइस कि आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बेस्ट को चुने. सो फॉर दैट यू नीड टू डू रिक्रूटमेंट. ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. अंडर रिक्रूटमेंट हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज देखना होगा. यहाँ पे व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल विद अस, देन असेसिंग देयर वैलिडिटी. जो भी सोर्स अवेलेबल है उसका वैलिडिटी असेस करना होगा. सेकेंड पॉइंट. देन थर्ड स्टेप में चूजिंग द मोस्ट सूटेबल. वैलिडिटी हमने चेक कर लिया है. देन नाउ वी हैव टू चूज द बेस्ट वन विच इज सूटेबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. देन फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है? इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज आपको पता चल गया है. सो अब आप क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट में उनको इन्वाइट करेंगे सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर जॉब. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ first and the first work we need to do is to find out the sources. Okay, so क्या क्या sources available है? See, under recruitment we have sources, 2 different types of sources. यहाँ पे हम sources लिखेंगे. Sources of recruitment. The first one is internal source of recruitment and second one is external sources of recruitment. Okay students, so basically we have 2 different sources of sources under recruitment. तो इसमें first source हम पहले detail देखेंगे. So again first source is subdivided into, और first source में जो है we have 2 types. The first one is transfers and the second one is promotions. Now let's see what is a transfer. ये internal sources, again आप याद रखें, internal recruitment which has been done within the organization. Existing employees within the organization are being selected. Okay, तो उसको हम internal source of recruitment बोलते हैं. Organization के अंदर से ही आप select कर रहे हो. Okay, so the first one is transfer. Transfer is what? Shifting of existing employees
from one job to another, one department to another, or from one shift to another. ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर मीन्स व्हाट, शिफ्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको आप शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. जो भी जॉब में है वो उनका पोटेंशियल्स की वजह से जो है हम और कोई जॉब में उनको ट्रांसफर कर रहे हैं. वन डिपार्टमेंट टू अनदर, सेल्स डिपार्टमेंट में है उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं. ओके एंड देन वन शिफ्ट टू अनदर. यहाँ पे व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज विदाउट any significant changes in SSR. आप याद रखें, ठीक है. ये जो भी यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, this all will be done but without any significant changes in the SSR. What is this SSR? Status, salary और एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर तो हो रहा है आपका एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट, लेकिन आपका एसएसआर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. ओके सो क्यों चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आप इक्वल जो पोजीशन है उसी में जा रहे हो. यू आर नॉट बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, अपर लेवल में आप प्रमोट नहीं हो रहे हो. ओके सो और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, दैट इज this is a horizontal movement of employees. Okay, this is an horizontal movement of employees. Why it is called as a horizontal movement of employees? क्योंकि आप जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक शिफ्ट से अदर शिफ्ट में जब आप जा रहे हो तो आपका लेवल ऑफ जो पोजीशन, आपका जो पोजीशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. ऐसी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने देखा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल. सेम टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल इज देयर. ओके सो आपका जब ट्रांसफर होगा टॉप लेवल का टॉप लेवल में ही ट्रांसफर होगा, मिडिल लेवल का मिडिल लेवल में ही होगा एंड सुपरवाइजरी लेवल का सुपरवाइजरी लेवल में ही ट्रांसफर होगा. सो इट इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ. हॉरिजॉन्टली आपका मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टली हो रहा है, आप अपर लेवल में नहीं जा रहे हो. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट रिमेंबर दिस. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट टाइप, दैट इज प्रमोशन. शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज from a lower level or position to an upper level or position. ओके सो प्रमोशन में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू एन अपर लेवल पोजीशन. यहाँ पे उनका जो प्रमोशन हो रहा है, मतलब लोअर लेवल में आप थे यानी कि सुपरवाइजरी लेवल में थे आप, नाउ यू आर बीइंग प्रमोटेड टू द मिडिल लेवल. ओके देन मिडिल लेवल से कैसा हो सकता है, जैसा सुपरवाइजर मैनेजर बन गया, मैनेजर डिपार्टमेंटल हेड बन गया, डिपार्टमेंटल हेड नेक्स्ट लेवल में चले गया. ओके सो लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर. यहाँ पे दिस विल बी डन विथ significant changes in the SSR. अगेन यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे ट्रांसफर में जो है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द SSR मैंने बोला था. यहाँ पे जस्ट रिमेंबर विद सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द SSR. दैट मीन्स व्हाट, व्हेन यू आर बीइंग प्रमोटेड फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अपर लेवल, योर सैलरी विल बी हाइक्ड, योर स्टेटस विल बी इम्प्रूव्ड एंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ेगा. सो SSR यू कैन सी चेंजेस इन द SSR. देन यहाँ पे नेक्स्ट वन इज द मोमेंट. This is a vertical movement of employees. This is
अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, वाई इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज? सी क्या होता है यहाँ पे, प्रमोशन में जो लेवल है आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल है, ये लेवल में प्रमोशन आपका ऐसा होगा, ओके, फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल में आपका ट्रांसफर होगा, सॉरी प्रमोशन होगा, ओके। आप सुपरवाइजरी लेवल में थे, नेक्स्ट आपका मैनेजर लेवल में पोस्टिंग हो रहा है, तो आप अपर लेवल में जा रहे हो, सो इट इज कॉल्ड एज इट इज अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ओके स्टूडेंट्स, होप इसमें जो भी पॉइंट्स आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, सो रिक्रूटमेंट मीनिंग बता दिया था आपको, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज देयर, एंड देन उसमें फर्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज में अगेन वी हैव 2 टाइप्स, वन इज ट्रांसफर एंड अनदर वन इज प्रमोशन। And a transfer, shifting of an employees from one job to another, one department to another, one shift to another shift. Okay, so मैंने क्या बोला था यहाँ पे, without all these will be done without any changes in the SSR. Just remember what is SSR. Then promotion में क्या बोला था, shifting of employees from lower level position to an upper level position. Then with significant changes in the SSR. यहाँ पे आप SSR याद रखिए, status, salary and responsibility change होगा, हाइक होगा, सैलरी हाइक होगा एंड इंक्रीज होगा उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन दिस इज अ वर्टिकल मूवमेंट। क्यों इसको वर्टिकल मूवमेंट बोले हैं, ये फ्रॉम डाउन टू आप ऐसा प्रमोशन होके जाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। So these are the merits of internal sources of recruitment. The first one is employee motivation. When promotion is done within the organization, the employees get motivated and their performance will be improved. Okay, and जो short video आपने last class में देखा था about Sundar Pichai, you might remember कि वहाँ पे due to the promotion he gave his 100% to the organization and he is very loyal and committed towards Google. ठीक है, तो वो आप यहाँ पे याद रखिए। then simple process, it is a simple process because we are not going to give any advertisement and we are not going to do all the recruitment processes, so it is a simple process. Then facilitate training, because whenever you are being transferred from one department to another department or one shift to another, one job to another, that means what you are learning the things whatever in the next department. ठीक है, आप एक सेल्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो यू लर्न द थिंग्स व्हाटएवर इज बीइंग कैरिड आउट इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सो ये क्या होता है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलता है। देन नो इंडक्शन ट्रेनिंग, बिकॉज ऑलरेडी यू आर acquainted with the वर्क कल्चर, रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन, सब कुछ आप वहाँ पे जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन का जानते हैं, बिकॉज यू आर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडक्शन ट्रेनिंग का वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है। देन फिलिंग डेफिशिएंसीज, जो भी डेफिशिएंसीज क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इट विल बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर और प्रमोशन। सो इट इज़ ऑल्सो अ मेरिट। देन इनएक्सपेंसिव, इट इज़ इनएक्सपेंसिव बिकॉज वंस अगेन आई टोल्ड यू सिंपल प्रोसेस। यहाँ पे ये भी याद रखिए, टी मी, बिकॉज लेस टी मी, less consumption of time, money and effort. Okay, less consumption of टाइम, मनी एंड एफर्ट। आपका टाइम वहाँ पे बच जाता है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी एस्टिमेशन में आपको जितना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, या रिक्रूटमेंट के लिए जितना आपको प्लान करके वो करना पड़ रहा है, वो टाइम वहाँ पे सही हो जाएगा। देन मनी, ऑब्वियसली द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वट एवर अमाउंट यू नीड टू स्पेंड, वो वहाँ पे बच जाता है। एंड एफर्ट्स, वट एवर एफर्ट्स यू नीड टू टेक, वो भी आपका वहाँ पे कम हो जाता है। ओके, सो इट इज इनएक्सपेंसिव, लेस कंजम्पशन ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, यहाँ पे याद रखिए। ओके स्टूडेंट्स, सी दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। द फर्स्ट वन इज नो फ्रेश टैलेंट्स। सो व्हेन यू आर डूइंग इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रेश टैलेंट्स को जो है आप यहाँ पे मौका नहीं दे सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज लेथार्जिक एम्प्लॉइज। व्हेन ऑल द एम्प्लॉइज नो कि टाइम बॉन्ड, उनका जो प्रमोशन है वो टाइम बॉन्ड ही है, आफ्टर सम ईयर्स दे विल बी गेटिंग प्रमोटेड टू द अपर लेवल, तो यहाँ पे जो है दे बिकम लेथार्जिक, उनको ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रहता है। सी नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बिकॉज दे नो अबाउट द प्रमोशन टाइम, ठीक है, एंड उनको पता है कि वॉट एवर दे डू उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, या उनको प्रमोशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ट्रांसफर होगा, ये सब कुछ जो है उनको पता है। सो उनके अंदर में जो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। व्हेन
एम्प्लॉयज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब और वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट. सो इसमें क्या होता है, वॉट एवर जॉब दे डिड और वॉट एवर एक्टिविटीज़ दे वर कैरीड ऑन, तो वहाँ पे वो इंटरप्शन हो रहा है, ठीक है, ब्रेक, एक इंटरप्शन हो रहा है. सो उनका जो कंसंट्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल में जाके नेक्स्ट वहाँ पे सेट होके वो कंसंट्रेट करके काम करना जो है, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम. ओके, सो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे हैम्पर, प्रोडक्टिविटी वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट, नॉट अवेलेबल टू न्यू एंटरप्राइजेज. जो भी न्यू एंटरप्राइजेज है वो ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को जो है फॉलो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर न्यू टू द न्यू एंड उनके पास जो है इंटरनल सोर्स नहीं रहता है. ओके स्टूडेंट्स, होप इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपको समझ में आ गया होगा. Okay students, now let's see what are the external sources of recruitment. What is this? Process of bringing fresh or and new blood in the organization. That means what? Prospective employees जो आपके organization के बाहर है उनको आप recruit कर रहे हो and business के अंदर लेके आ रहे हो. So there are 10 different sources of external sources. One by one हम यहाँ पे देखेंगे. Okay, so the first one is direct recruitment. What is this direct recruitment? The organization will put a notice in their notice board with all the details about the job. ठीक है, जो भी जॉब वैकेंसी है उसका पूरा का पूरा डिटेल्स के साथ जो है नोटिस बोर्ड में पेस्ट कर दिया जाएगा. एंड द पीपल दोज सी द नोटिस बोर्ड विल कम फॉर द इंटरव्यू ऑन द पर्टिकुलर डेट एंड टाइम विच इज बीइंग मेंशन्ड इन द नोटिस बोर्ड. ठीक है, एंड दिस विल बी ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट बिकॉज दिस इज डन फॉर अनस्किल्ड पीपल. ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट है वो अनस्किल्ड पीपल या सेमी स्किल्ड पीपल के लिए होते हैं. सो ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट हो जाएगा. ओके, देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बदली वर्कर्स. पर्पस क्या है, ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसका पर्पस क्या है? कैजुअल जो लीव में जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल लीव में गए या मैटरनिटी लीव में जा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है वहाँ पे जॉब वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए दिस सच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज यूज्ड. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर, अंडर कैजुअल कॉलर एक्चुअली जो अनसॉलिसिटेड कैंडिडेट्स होते हैं. व्हाट इज दिस अनसॉलिसिटेड कैंडिडेट्स? सो ऑलरेडी आपने जो है कोई भी वैकेंसी के लिए जो रिक्रूटमेंट किया होगा, बहुत सारे इंटरव्यू के लिए आए होंगे एंड फ्रॉम दैट पीपल आपने एक रिक्वायरमेंट आपका 10 था, आपने 10 को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन जो और भी 5 जो इंटरव्यू दिए थे वो भी जो है बहुत परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था. तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी कीपिंग द डेटाबेस ऑफ दैट पीपल विद यू एंड whenever the requirement is there तो you will be calling them. ठीक है, it is an inexpensive recruitment क्योंकि क्या हो जाता है, ऑलरेडी अनसॉलिसिटेड कैंडिडेट्स का डेटाबेस आपके पास है, तो whenever it is required आप इमीडिएटली उनको कॉल करके बुला देंगे. सो it is inexpensive. Okay, so next one is advertisement. सो एडवर्टाइजमेंट थ्रू एनी प्रिंट मीडिया. यहाँ पे सिर्फ हम प्रिंट मीडिया देखेंगे, लाइक कोई न्यूज़पेपर में दे दिया, जर्नल, मैगजीन्स और ट्रेड जर्नल्स या प्रोफेशनल जर्नल्स, ये सब में जो है आप जो भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो सो एज टू रिक्रूट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, दैट ऑल कम्स अंडर एडवर्टाइजमेंट. दिस इज एन ओल्ड टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल टू अट्रैक्ट द मास. ठीक है, यहाँ पे ये दिस एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली जो है मास को रीच करता है एंड दिस इज वेरी पॉपुलरली यूज्ड सोर्स ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट exchange. Employment exchange is nothing but an office run by government, and here the prospective employees and the organization will register themselves in the employment exchange, and here the employment exchange will act as a link between the prospective employees and the organization. ठीक है, अब prospective employees क्या करेंगे, वो ऑलरेडी जो है अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर करके रखे हैं, एंड whenever they see कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा डिमांड है, जो भी क्वालिफिकेशंस इन्होंने रजिस्टर करके रखा है, द सेम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से उनको रिकमेंड किया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज
प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेम, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज दिस इज रन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड दिस इज रन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इसको रन करते हैं। एंड यहाँ पे भी क्या है, डेटाबेस विल बी कलेक्टेड फ्रॉम मेनी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड दैट विल बी केप्ट विद द एजेंसीज। तो ये क्या करेंगे, व्हेनेवर रिक्वायरमेंट इज देयर, जैसा जॉब सीकर्स आर देयर एंड जॉब प्रोवाइडर्स आर ऑल्सो देयर, सो दोनों ही रजिस्टर्ड रहेंगे। जो जॉब सीकर्स है उनका पूरा डेटाबेस यहाँ पे है, तो क्या होगा, जॉब प्रोवाइडर्स का जब रिक्वायरमेंट आएगा, जब डिमांड आएगा, तो वो डिमांड एंड सप्लाई को जो है दीज पीपल विल मैच। ओके, सो ओनली डिफरेंस इज दिस इज बीइंग रन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड दिस इज बीइंग रन बाय द प्राइवेट कंसर्न्स, ओके, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। नेक्स्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट। What is this campus recruitment? You all know many big reputed companies will have a contact with or have a link with the many famous institutions, colleges, so as to recruit the students from the college campus itself, ठीक है। जो भी meritorious students हैं उनको उनके कॉलेज पीरियड में ही, लाइक फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कैंपस में जाके इंटरव्यू कंडक्ट करना या टेस्ट कंडक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, इसके बाद उनको सेलेक्ट कर लेना वहाँ पे एंड देन व्हेन दे कंप्लीट द कोर्स उनको वहीं से जॉब अपॉइंटमेंट दे देना। ओके, दिस इज ऑल्सो अ फेमस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज या मैनेजमेंट कोर्सेज जो करते हैं उनके लिए it helps them a lot. Then next is a recommendation of employees. What is this recommendation of employees? Actually here the people those who are already working in with the organization, they will be recommending. See, कभी अगर vacancies हैं तो the top level management will ask the employees to recommend some people for the vacancies, ठीक है। तो क्या होता है, the people those who are already in the business, existing employees, वो क्या करेंगे, किसी को recommend करेंगे। And nowadays it is also a very important source of recruitment. Okay, so next one is labor contractor. So labor contractors, यहाँ पे क्या होता है, labor these people are actually एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट इनके पास क्या होता है, दे हैव अ क्लोज रिलेशन विद द लेबर्स, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर्स एंड उनका पास जो है बहुत सारे लेबर्स का जो है एक डेटाबेस रहता है। एंड व्हेनेवर लाइक फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे लेबर्स का जब ज़रूरत पड़ता है तो दीज पीपल विल रिकमेंड द एम्प्लॉइज फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है। तो इसी केस में क्या होता है, सी व्हेन वी डू द कंस्ट्रक्शन वर्क वी नीड मेनी लेबर्स, ठीक है। अब एक एक लेबर्स के लिए हम रिक्रूट करके एक एक लेबर्स को चुनना देन अपॉइंट करना, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ओके, सो उससे बेटर क्या होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप अप्रोच कर रहे हो एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर से आप बोल रहे हो कि यू नीड 10 और 20 और 30 नंबर ऑफ लेबर्स टू डू दिस वर्क। तो आपको वो 20, 30, 40 जितने भी आपका रिक्वायरमेंट है सीधा ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर से ही आपको मिल जाएगा। बट ओनली डीमेरिट इज व्हाट, जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपसे कोई प्रॉब्लम हो गया, समथिंग सम फाइट और कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो द पीपल दोज हु आर गिवन बाय द लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो भी जो है दे विल ऑल्सो लीव द ऑर्गेनाइजेशन। सो वो एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। देन नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। Whenever vacancies arises, जो आप ऐड दे रहे हो वो टेलीविजन में दे रहे हो। ओके, सो टेलीविजन बहुत सारे चैनल्स में आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो रिगार्डिंग द जॉब वैकेंसीज एंड विद द फुल डिटेल्स। ओके, जो भी डिटेल्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में एंड वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी है, बहुत सारे डिटेल्स जो है आप इसमें दे सकते हो। सो वट एवर इज पॉसिबल उतना सारे डिटेल्स जो है आप टेलीविजन में टेलीकास्ट कर रहे हो डिफरेंट चैनल्स में। सो यू कैन नाउ यू नो कि कितने सारे चैनल्स हैं। सो आप जो भी रेप्यूटेड चैनल्स है उसमें आप अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो फॉर रिक्रूटमेंट एंड दिस कैन रीच द मास। ओके, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, बहुत सारे पीपल को जो है ये रीच करे, यानी कि इट विल रीच द मास। ओके,
The next one is web publishing. This is also one of the famous recruitment source. So यहाँ पे क्या हो रहा है? So one different vacancies, whenever vacancies arises, you are publishing the vacancies in through the internet. ठीक है, स्पेशली क्रिएटेड वेबसाइट्स में जो है, स्पेशली क्रिएटेड फॉर द जॉब वैकेंसीज, लाइक फॉर एग्जांपल monster.com हो गया या naukri.com हो गया, लाइक दिस जो स्पेशली क्रिएटेड है वो पर्टिकुलर साइट्स में जो है आप वैकेंसीज का जो डिटेल्स है वो आप पब्लिश कर रहे हो. ओके, सो इससे क्या होगा, अगेन वेब पब्लिशिंग में भी, वेब पब्लिशिंग वेबसाइट है जो स्पेशली क्रिएटेड फॉर रिक्रूटमेंट एंड ऑल है, वहाँ पे भी ऑल प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज आर देयर. ऑर्गेनाइजेशंस दोज हु आर सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज वो भी वहाँ पे सर्व कर रहे हो, तो क्या होगा, दोनों का लिंक वहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, बोथ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स मीट इन वन प्लेस. ओके, यहाँ पे दोनों ही जो है इंटरनेट सर्व कर रहे हैं, दोनों को पता है कि वन पर्सन इज सर्चिंग फॉर जॉब एंड वन इज द प्रोवाइडर. तो ये इसने भी अपना रेज्यूम या बायोडाटा वहाँ पे रजिस्टर कर रखा होगा एंड वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, वो भी अपना पूरा डिटेल्स जो है यहाँ पे छोड़े होंगे. तो वेबसाइट में जाना, इंटरनेट में सर्फ करना एंड सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर, लाइक आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से सर्चिंग द जॉब इज वेरी इजी. सो दीज आर द डिफरेंट external sources. Hope you understand all the points in this. Okay, let's see the merits and demerits of external sources of recruitment. The first one is qualified personnel. ठीक है, so इसमें क्या है, when you are recruiting the people through internal sources, वहाँ पे जितना choice है उसी के अंदर से आपको search करना है, उसी के अंदर से आपको select करना है. But when you go for external source, qualified personnel, you may select good qualified personnel जो creative, highly creative people होंगे, उनको आप select कर सकते हैं. Next, wider choice, you can get a wider choice. Again, internal sources में जो है whatever is available, you have to select your best from that particular available employees only. लेकिन आप जब बाहर जा रहे हो तो you will be getting wider choice. जैसा एडवर्टाइजमेंट हमने टेलीविजन में टेलीकास्ट कर दिया है या फिर हमने पेपर में पब्लिश किया हुआ है, मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया में हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल रीच द मास ऑफ पीपल एंड आपको वाइडर चॉइस मिलेगा. देन फ्रेश टैलेंट, यू कैन सिलेक्ट फ्रेश टैलेंट्स, यानी कि फर्स्ट हम लोग इसमें मीनिंग में क्या था, प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग फ्रेश न्यू ब्लड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो बाय डूइंग सो यू कैन bring in fresh and new bloods in the organization. Fresh talents आपको मिलेगा. Competitive spirit, so definitely competitive spirit आप देख सकते हैं, because already the people those who are working in the organization when they see कि new recruitment हुआ है तो उनके सामने जो है आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपका परफॉर्मेंस जो है बेटर करोगे. जो न्यू आया है वो भी जो है what he will do, वो भी मैक्सिमम चाहेगा कि he will give good performance in front of the employees those who are already इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये क्या होगा, दोनों का जो परफॉर्मेंस है उसको हाइक करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा. देन जब हम लोग मेरिट्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली सम डीमेरिट्स भी वहाँ पे रहेगा. सो लेट्स सी व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. द फर्स्ट वन इज डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ्स. जो एग्जिस्टिंग स्टाफ्स है उनके अमंग देम इट विल क्रिएट अ डिससैटिस्फैक्शन, बिकॉज हो सकता है कि वहाँ पे भी टैलेंटेड पीपल है, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स या रूल्स जो है, व्हेन कंपनी इज सिलेक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, डेफिनेटली वो उनके अंदर में जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी दोज आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर में ये आ जाएगा कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेरा प्रमोशन या ट्रांसफ़र में जो है कोई प्रॉब्लम आया है. ओके, सो ये एक डीमेरिट है. देन लेंथी प्रोसेस, बिकॉज यू नीड टू अप्लाई, यू नीड टू गिव इन द प्रिंट मीडिया. जो भी वैकेंसीज अराइज होता है, जब भी वैकेंसीज अराइज होता है, यू हैव टू पब्लिश और यू व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू अट्रैक्ट द पीपल और इनवाइट द पीपल. सो फॉर इन्विटेशन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू लाइक ये सोर्सेज को आपको चुनना पड़ेगा. देन यू हैव टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर सोर्स वट एवर इज बेस्ट सुटेड फॉर यू. तो ये सब प्रोसेस करने के बाद, आप इन्विटेशन देने के बाद भी यू हैव टू वेट फॉर द एप्लीकेशन. ठीक है, एंड देन अगेन जो भी सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी इंटरव्यू है,
टेस्ट है, वो सब करने के लिए जो है डेफिनेटली इट विल बिकम अ लेंदी प्रोसेस. सो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है. देन कॉस्टली प्रोसेस, येस इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि हमने जो अभी प्रोसेस बताया था. ओके, सो फर्स्ट रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, अंडर सिलेक्शन ऑल्सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, डिफरेंट मेथड्स. यू विल बी फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स टू सेलेक्ट वन एम्प्लॉई. ठीक है, बहुत सारा टेस्ट होता है वहाँ पे. सो वो सब करने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारा स्पेंड करना होगा. सो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है. वेर एज व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विथ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, वहाँ पे इट इज़ इनएक्सपेंसिव, वहाँ पे हमने देखा था. ओके स्टूडेंट्स, सो होप जो मेरिट्स है, डीमेरिट्स है एंड ऑल द पॉइंट्स विच नाउ वी हैव डिस्कस्ड, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स सी क्विक रिकैप ऑफ the topics. So our topic is all aspects of staffing. Under this I told you recruitment, selection and training are the components or elements of staffing. What is recruitment? It is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization. Next हमने क्या देखा था? Objective. Then we have seen the process of recruitment. उसमें हमने mainly देखा था कि sources of labor supply. So identification of sources of labor supply. So now we'll see the sources of recruitment. So we saw basically there are two sources of recruitment. One is internal sources. We have seen the merits and demerits of internal sources of recruitment. External sources. Under external sources we have 10 different types of external sources. So merits are qualified personnel, wider choice, fresh talents, competitive spirit. So that's all for today's class, students. Hope you understood all the points. We'll meet you in the next class. Thank you. Bye bye.